ओके, तो हम लोग पहले इसमें चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट इज एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी। यार, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है मैडम? एनीथिंग विच वी कैन मेजर, एनीथिंग विच वी कैन मेजर, that is called as physical quantity. Always a physical quantity is represented by with a numerical value and its unit. So whenever he will be asking a question, please convert one unit into another unit. At that time, what we'll be using? We'll be using this formula. N1 U1 is equals to N2 U2, where N1 is a number of first unit and U1 represents unit. N2 is another number, and sorry, this is becoming U2. U2 represents another unit. We'll solve the problem based on this. Don't worry. As of now, just remember this formula. Next, we know that this physical quantity is classified into two types. What are the two different types of physical quantity? One is called as fundamental physical quantity. Another one will be called as derived physical quantity. See here, as this is NEET class and we are doing this crash course, I will be concentrating on the problem solving. मैं पूरा डिटेल थियरी में नहीं आता मैडम, कई बोल तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. So here we'll be concentrating on problem solving. So what are fundamental physical quantities which can't be derived? Generally, how many fundamental physical quantities we are having? We know that mass is one of the fundamental physical quantity. कई बोल तो नहीं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट क्या है? लेंथ. नेक्स्ट व्हाट इज दैट? टाइम. Again, what are the other physical quantities I can write which does not depend on other quantities? Another one is electric current. You should remember this, electric current. Next one is luminous intensity. Luminous intensity. And the final one is amount of a substance. Sorry, amount of a substance. Amount of substance. And the last one is temperature. So you should remember that there are 7 fundamental physical quantities. What are those things? Mass, length, time, electric current, luminous intensity, amount of a substance, and temperature. Then what about derived physical quantities? What are derived physical quantities? Those quantities which depend on other physical quantity. ऐसे quantities जो fundamental physical quantities के ऊपर depend करते हैं. अच्छा ठीक है सर, फिर इसके examples क्या है बल्कि बोले तो first example I am writing. See here. What is the formula for speed? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ पर देखो, स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन टाइम. सो दिस दैट इज द रीजन दिस स्पीड इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पीड इज कॉल्ड एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. और एक एग्जांपल क्या लेते हैं? एक्सेलरेशन ले लो. एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट मैडम? एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड टाइम. सो एक्सेलरेशन इज आल्सो ए डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज. तो दिमाग में ये बात रख लीजिए, एक्सेप्ट दी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बाकी के जितने भी क्वांटिटीज है वो कौन से क्वांटिटीज है मैडम? ऑल ऑफ देम आर डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज. डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज. रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं मैं. नेक्स्ट, see here. Next thing I am going to discuss is dimensional formula. Dimensional formulas. Here dimensional formulas क्या रहते बोल के बोलो तो suppose I am taking one example. What is that example? I am writing one physical quantity, that is speed. What is the unit of speed? Speed की unit क्या? अच्छा पहले formula लिख लेता हूँ. Speed का formula क्या है? Distance divided by time. Now this distance can be measured in meter. You can also measure in centimeter. I am taking here meter. And time can be measured in what मैडम? Second. तो ये मीटर को रिप्रेजेंट हम लोग, व्हाट कैन बी द फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर मीटर? मीटर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर? कैन वी रिप्रेजेंट मीटर विथ लेंथ? लेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और सेकेंड्स को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टाइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर मैं स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता? मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ और सेकेंड बोल तो टाइम. तो डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर स्पीड कैन बी रिटन एज एल
टी को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले लेंगे तो क्या बन जाता, टी पावर -1। तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर स्पीड बोल के आया, तो व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर स्पीड, एल टी पावर -1। सिमिलरली सर व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूले कैसा लिखना सर, तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या रहती, व्हाट इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, वी नो दैट यूनिट फॉर एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या बनता, लेंथ बनता, और सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइम, तो यहाँ पर टाइम क्या क्या बनता, टी स्क्वायर बनता। तो इसका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूले क्या बन जाता, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूले क्या बन जाता हमारे को, एल टी पावर, ये टी स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेंगे तो टी पावर -2। नेक्स्ट और एक का हमला लिख लेंगे, और एक का क्या लिखेंगे हमला, फोर्स का लिखेंगे, फोर्स, FORC, फोर्स। फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट फोर्स F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता, हम लोग विल रिप्रेजेंटिंग इट विद कैपिटल M। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिराइव करें, क्या है, एल टी पावर -2। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में आ राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर फोर्स बोल, तो आप लोग कैसा लिखते, इट विल बिकम M L T पावर -2। दिस ऑल थिंग्स यू आर सपोज टू रिमेंबर। और एक लिखेंगे, और एक को सा बोलो भाई फंडा, और एक आप लोग एग्जाम्पल लिखिए चैट बॉक्स में, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, और एक चलो हम एक फॉर्मूले का डायमेंशन और एक लिखेंगे हम सपोज, वी नो दैट वी आर हैविंग वन फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हम G का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। G रिप्रेजेंट्स व्हाट मैडम, G रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G को मैं कैसा लिख ले सकता हूँ, आई कैन राइट कैपिटल G इज इक्वल्स टू R स्क्वायर को यहाँ पर भेजे तो क्या बन जाता, F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2 किधर चले जाता, डिनोमिनेटर में चले जाता, M1 इंटू M2। और F का डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, देखो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर F, वी नो द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर F इज MLT पावर -2। और आर स्क्वायर इज नथिंग बट फिर से लेंथ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम बोल तो मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूले किससे रिप्रेजेंट करता बोला मैं, कैपिटल एम से। तो यहाँ पर कितने मास है, दो मास है, तो एम इंटू एम। तो इसको सॉल्व करें तो क्या था, देखो एम, यहाँ पर एक एल है, यहाँ पर एल स्क्वायर है, सो दिस विल बिकम हाउ मच, एल क्यूब। और बचा क्या यहाँ पर, टी पावर -2, टी पावर -2 डिवाइडेड बाई एम इंटू एम क्या बन जाता, एम स्क्वायर बन जाता। अब यहाँ पर क्या क्या कैंसल हो जा रहे, कैपिटल एम, और यहाँ पर स्क्वायर कैंसल हो जा रहा, और ये एम को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर ले लेंगे तो क्या बनता मैडम, इट विल बिकम -1। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूले कैसा लिखते हैं हम लगा, ये एम को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले लेंगे तो दिस विल बिकम एम पावर -1, और यहाँ पर क्या है, एल क्यूब टी पावर -2। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस, हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूले। ओके मैडम, यहाँ पर थोड़े someone has written sended me the message to write the dimensional formula for power, inductance, stress। stress is nothing but force acting per unit area। force का और area का डिवाइड करें तो आप लोगों को इसका डायमेंशनल फॉर्मूले आ जाता। इलेक्ट्रिक फोर्स, जितने भी फोर्सेस है मैडम, वो इलेक्ट्रिक फोर्स रहने दो, ग्रेविटेशनल फोर्स रहने दो, कौन से भी फोर्स रहने दो, उसका फॉर्मूला क्या बनता हमारे को, फोर्स का फॉर्मूला पूरा यही बनता। एक जनो परमिटिविटी बोल के लिखे, परमिटिविटी का हमारे को जनरल फॉर्मूला क्या, परमिटिविटी किसमें आती है हमारे को, फोर्स के फॉर्मूले में आती है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इससे हमला कैसा लिखना है इसको, ε0 इज इक्वल्स टू, ये 4π को यहाँ पर भेजो, 4π इंटू F इंटू R स्क्वायर, ये R स्क्वायर भी न्यूमरेटर में चला जाता, डिवाइडेड बाई व्हाट, Q1 Q2। कुछ भी नहीं, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना, आर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना, चार्ज Q1 Q2 का डायमेंशनल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करना, उसका सब्स्टिट्यूट करें तो आप लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूले आ जाता। अब ये जितने भी मैसेजेस कर रहे विस्कोसिटी के सर, ये हर चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यू आर सपोज टू रिमेंबर फ्यू डायमेंशनल फॉर्मूले, बेसिक फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूले याद रख, वो याद रखने के बाद अपना कोई से भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।
चार्ज के लिए क्या लेना सर? चार्ज के लिए हमारे को क्या रहता है, देखो चार्ज का फॉर्मूला इधर लिखता हूँ यहाँ पे साइड में। चार्ज का हमारे को फॉर्मूला क्या रहता है, I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से क्या आ सकता है हमारे को, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। करंट को क्या लेते बोल के बोला, करंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता, टी रहता। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे को क्या बन जाता मैडम, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बिकम ए इंटू टी। ठीक है, ऐसे हर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग, इसमें परेशान मत होइए। मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं भेजता हूँ आप लोग उसमें से स्टडी कर लीजिए। चलिए, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये हर एक डायमेंशनल फॉर्मूले कर लेते तो बहुत टाइम हो जाता, दूसरे टॉपिक्स नहीं कर सकते हम लोग। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एरर्स के ताल्लुक से। एरर्स, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजीली टॉपिक है। सर वेयर विल यू सेंड, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ किधर भेजना है, कई बोल तो ग्रुप में एडेड नहीं हो आप लोग के, मैं सर से डिस्कस करके आप लोगों को बोलता हूँ। अभी मैं डिस्कस करता हूँ सर से, डिस्कस करके बताता हूँ। चलिए, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर। एरर का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस की ओरिजिनल लेंथ जो प्रिंटेड है सब्सटेंस के ऊपर, ओरिजिनल लेंथ इज 5.86 सेंटीमीटर है। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, बट मैं क्या करा, एक स्टूडेंट को इसकी लेंथ मेजर करने दिया। तो स्टूडेंट क्या करा, लेंथ मेजर करा, उसको वैल्यू कितनी आई बोलते 5.96 सेंटीमीटर आई। ये स्टूडेंट मेजर करे सो वैल्यू है। तो दिस इज आई एम राइटिंग दिस वन एज मेजर्ड वैल्यू, दिस आई एम राइटिंग एज ट्रू वैल्यू। ये दो वैल्यूज में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 5.86 है, यहाँ पर 5.96 है, ये दो वैल्यूज में डिफरेंस कितना है। आई एम सीइंग इन द ग्रुप मैडम, ग्रुप में मैसेज, सॉरी आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं देख रहा हूँ वो चैट बॉक्स। 0.1 सेंटीमीटर का, तो 0.1 सेंटीमीटर। तो ये दो मेजरमेंट्स में अगर हमारे को एरर कितना है पूछे बोल के बोलते तो हम लोग क्या करते, द एरर बिटवीन दिस टू मेजरमेंट्स इज 0.1 सेंटीमीटर बोल के बोलते। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एरर, एरर का फॉर्मूला क्या रहता, एरर फॉर्मूला इज रिटन एज ट्रू वैल्यू माइनस measured value, remember this, error is equals to true value minus measured value। अब इसमें हमारे को सपोज एक इक्वेशन दिया, क्या दिया बोल के बोले तो एरिया इज गिवन एज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। यहाँ पर जो ए रहता ना मैडम, ए रिप्रेजेंट्स ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू बोल के भी बोल सकते हैं हम लोग। और ये जो प्लस और माइनस डेल्टा ए जिधर भी दिखता आप लोगों को, ये प्लस और माइनस डेल्टा ए क्या रिप्रेजेंट करता, दिस रिप्रेजेंट्स एरर। दिमाग में रख लीजिए, सपोज आप लोगों को एक इक्वेशन दिया, क्या दिया, 5 प्लस और माइनस 0.2 सेंटीमीटर बोल के दिया। तो इसमें से ट्रू वैल्यू क्या बनती, 5 विल बिकम ट्रू वैल्यू, और एरर की वैल्यू क्या बनती, 0.2 विल बिकम एरर वैल्यू। रिमेंबर दिस पॉइंट, इसके ऊपर प्रॉब्लम बहुत बार पूछे, हम लोग करते भी है। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सारी एरर्स में बोल के बोले तो, ही विल बी गिविंग वन इक्वेशन, इन्हें एक इक्वेशन देता, मैं आई एम राइटिंग रैंडम इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पर एक। अच्छा, और एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैडम, ये याद रखिए, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये इसको नींद में भी याद रख लेना आप लगा, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर वैल्यू मेजर्ड वैल्यू नहीं, एरर ये जो है ना, ये डेल्टा ए आ रहा बोल तो एरर है बोल सकता हूँ, याद रख लीजिए, डेल्टा जिधर भी आ रहा, डेल्टा प्लस और माइनस वन हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। सर कुड यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैडम, या सर मैडम है या सारे मेरे को नहीं मालूम, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मगर हमारे को उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको लास्ट में उसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, प्रिसीजन किसको बोलते हैं, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं। एक बोल तो हमारे को नीट पे नहीं पूछता, वो आईपी में रहा तो पूछ लेता। हम लोग जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं नीट के ताल्लुक से डिस्कस करने वाले, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार तो हमारे को पूरा डिस्कस करे तो उतना टाइम नहीं है। चलिए, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये पॉइंट याद रखिए आप लोग। उन्हें डिवीजन दिया तो भी एरर में हम लोग क्या करना, ऐड करना। उन्हें मल्टीप्लीकेशन दिया तो भी एरर में क्या करना, ऐड करना। उन्हें सब्सट्रैक्शन में दिया तो एरर में क्या करना हम लोग, हमेशा ऐड करना। ये पॉइंट को दिमाग में रखिए, एरर्स और ऑलवेज क्या, एरर्स और ऑलवेज
एडेड, रिमेंबर दिस पॉइंट। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज उन्हें क्वेश्चन में दिया, क्या दिया, अच्छा मैं एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूँ, इसको परसेंटेज एरर बोलते हैं, कई बोलते उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ। अब सपोज उन्हें क्वेश्चन में दिया एक वैल्यू x है, x इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b बोल के दिया। अब इन्हें क्या बोल रहा क्वेश्चन में हमारे को बोल के बोले तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन x, क्या बोल रहा, फाइंड द परसेंटेज एरर इन x। तो इसको कैसा लिखना पहले आप लोग ऑब्जर्व करिए, उसके बाद हम लोग के ऊपर प्रॉब्लम है इसके ऊपर। जब भी परसेंटेज एरर इन x बोल के बोले तो हम लोग कैसा लिखते हैं इसको, बोल तो डेल्टा x, डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट करता, एरर, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू x। इन्हें परसेंटेज बोला बोल के मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू, अच्छा पहले मैं इक्वेशन को ऐसा लिख ले रहा हूँ, कैन आई राइट दिस इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, x इज इक्वल्स टू a इंटू, अगर b को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले लेंगे तो क्या बनता, इट विल बिकम b पावर -1। अब यहाँ पर गौर करिए आप लोग, कॉन्सेंट्रेट करिए, डेल्टा x को क्या लिखा मैं, डेल्टा x बाई एक्स, परसेंटेज बोला बोल के 100% से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पर a है, a में एरर कैसा लिखते, डेल्टा a डिवाइडेड बाई a इंटू 100%। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा मैं आप लोगों का माइक ऑन कर रहा हूँ मैडम, ताकि आप लोग कुछ आंसर करें तो मेरे को समझने में अच्छा रहता हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि आई हैव ओपन योर माइक्स मैडम, ट्राई टू आंसर दिस। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, क्या है यहाँ पे ऊपर के इक्वेशन में, मल्टीप्लीकेशन है, मगर हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरर फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। एरर हमेशा क्या होता, हाँ ये इसलिए बोला मैं, याद रखना यहाँ पर एरर को क्या लिखना, प्लस लिखना। अच्छा यहाँ पर क्या है, पावर -1, मगर हम लोग एरर में माइनस लिखते, प्लस ही लिखना, तो ये क्या बनता, 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%। समझ गए कैसा लिखते परसेंटेज एरर। इसके ऊपर नीट में आप लोग नीट की किताब निकाल के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम देखो, इसके ऊपर इस प्रॉब्लम भरे हुए रहते। ओके ये समझ गए ना कैसा लिखते, और एक एग्जांपल दो इसका जी। इंटू 100 लिखना, नहीं वहाँ पर भी +100 लिखना। नहीं ये परसेंटेज एरर है, इसको नहीं लिखे तो भी चल जाता है एक्चुअली, आप लोगों को प्रॉब्लम करे जब समझ नहीं आता, कि एक बोलते इसकी वैल्यू ने क्वेश्चन में देता 2% 3% बोल के देता, जब हम लिखने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। ओके सर, ओके चलिए सर। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बोलने की कोशिश करिए, करने की कोशिश करिए। सपोज देयर इज वन वैल्यू p इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c। नाउ आई एम आस्किंग यू टू राइट द परसेंटेज एरर इन p। तो कैसा लिखते हैं इसका, बोलिए मेरे को, डेल्टा p अपॉन p डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो पहले देखना, पहले इक्वेशन को ऐसा लिख लेना, p इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब, c डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में लेके तो क्या बनता, -1। हाँ अब यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, 2 लिख लेना यहाँ पर, 2 इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाय डे इंटू 100%। यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन है, मगर हम क्या लिखना, एडिशन। व्हाट इज द पावर हियर, 3 इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय b इंटू 100%। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, बट हम यहाँ पर क्या लिखना, एडिशन। यहाँ पर ऊपर पावर क्या है, -1, मगर हम क्या लिखना, 1 इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100%। समझ गए टॉपिक है तो कैसा करना। अब चलिए, कुछ भी नहीं मैडम, ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक इक्वेशन देता हूँ, इक्वेशन को हम लोग पहले पूरे न्यूमरेटर के टर्म से लिख देना। ये इक्वेशन कैसा लिखा समझ गया आपका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, 2 को यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, 2 को यहाँ पर लिख के a का एरर कितना लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, मगर एरर्स में हमेशा क्या होता, एडिशन ही होता, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखा, एडिशन लिखा। तो यहाँ पर b का पावर कितना है, b का पावर इज 3, तो मैं यहाँ पर क्या लिखा, पहले 3 लिख के फिर b का एरर लिखा, डेल्टा b बाई b इंटू 100%। सिमिलरली यहाँ पर c मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन के जगह में क्या लिखा, एडिशन लिखा। ऊपर यहाँ पर पावर कितना है, -1 है, मगर एरर्स में हमने क्या लिखते हैं, हम लोग पॉजिटिव ही लिखते, तो 1 इंटू यहाँ पर एरर क्या बनता, डेल्टा c डिवाइडेड बाई c। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हम लोग लास्ट में करते हैं, नीट 2019 का भी प्रॉब्लम ऐसी है। हाँ क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज एरर रहता, नहीं तो एरर बोल के रहता हूँ। आप लोगों को प्रॉब्लम्स आते हो, प्रॉब्लम्स करिए, जब देखिए मैं जल्द से जल्द थियरी कंप्लीट करें तो प्रॉब्लम दिखा सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट थियरिटिकल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या करता हमारे को, डायमेंशनल एनालिसिस में ही क्या करता, वो सा तो भी इक्वेशन देता हूँ, इक्वेशन देके उन लोगों के बीच का रिलेशन निकालो बोल के बोलता। अब सपोज मेरे को 3 टर्म्स दिया, क्या दिया बोल के बोले तो
टाइम पीरियड दिया, लेंथ दिया, जी रिप्रेजेंट्स क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन्हें ऐसा 3 टर्म्स क्वेश्चन में देके क्या बोलता, 3 ऑप्शन देता, सॉरी 4 ऑप्शन देता, ए बी सी डी, वो 4 ऑप्शन देके कौन सा फॉर्मूला सही है बोल के बोलता। तो हम ये कैसा फाइंड आउट करते सारा, ये तो हमारे को मालूम है, नहीं मालूम है तो फॉर्मूले कैसा फाइंड आउट करते सार बोल। तो देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, देखिए इन्हें क्या बोल रहा बोले तो, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दो वैल्यूज है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा बोल रहा, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा बोल के बोल रहा। क्या बोल रहा है, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, टाइम के ऊपर। तो जो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको लेफ्ट साइड लिख लेना हमने, मैं लिख लिया टाइम को लेफ्ट साइड। उसके बाद क्या करना, इक्वल्स टू लिखना। नेक्स्ट जो डिपेंड कर रहा ना उसको हमला राइट हैंड साइड लिखना है। यहाँ पर क्या क्या डिपेंड कर रहा है, एल और जी, प्लेस नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, खाली एल और जी। मगर यहाँ पर क्या करना है, इसके पावर एरर का नहीं है, जी जी एरर क्या, एरर का नहीं होता ये, एरर का नहीं होता ये। मैं क्या बोला, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेशन निकालना, ओके डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेशन निकालना रहता हमारा। अब देखो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखना, जो डिपेंड कर रहे हैं उन लोग किधर लिखना, राइट हैंड साइड लिखना। और इसके ऊपर कुछ पावर्स लिख देना, यहाँ पर पावर एक्स है, यहाँ पर पावर वाई, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी हो, ठीक है। अब यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, टी, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल, यहाँ पर पावर क्या है इसका, एक्स, तो मैं यहाँ पर एक्स लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग को अभी तक याद हो गया होंगे, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एल टी पावर -2, डायमेंशनल फॉर्मूला बोला मैं। तो यहाँ पर क्या था, एल टी पावर -2, ऊपर पावर कितना है, वाई। अच्छा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर एल पावर एक्स बन जाता, और यहाँ पर क्या बनता, एल पावर वाई, और यहाँ पर क्या बनता, टी पावर -2 वाई। समझ में आ गया सब लोगों को, यस। अब यहाँ पर देखो t is equals to, can this be written as L power x plus y लिख सकते हैं, यस, बचा क्या हमारे को, t पावर -2y। अब खत्म हो गया हमारा, 2 स्टेप्स में प्रॉब्लम आया था। यहाँ पर अब इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द इक्वेशन, यहाँ पर t का पावर कितना है, व्हाट इज द पावर ऑफ t हियर, 1 है, 1 है, 0 नहीं रहता, 1 रहता। यहाँ पर t का पावर कितना है, -2y, सो आई कैन राइट हियर 1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, -2y लिख सकता हूँ। कई बोलते हैं यहाँ पर t का पावर, यहाँ का t का पावर सेम है, यहाँ पर t बेस है सेम, व्हेनेवर बेसेस आर सेम द पावर शुड बी इक्वेटेड, इक्वेटेड करना, बाद में ऐड करते हैं हम, इधर है तो ऐड करते। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आती है हमारे को, y इज इक्वल -1/2। चलो हमारे को y की वैल्यू तो आ गई। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। यहाँ पर l का पावर क्या है, x प्लस y, LHS में l है, नहीं है, तो क्या करना, इक्वल्स टू 0 डाल देना। अब हमारे को y की वैल्यू मालूम नहीं मालूम, मालूम, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, x -1/2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू क्या था, 1/2। हमारे को x की कभी क्या देता क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो बोल के बोलता, नहीं तो क्या करता, डायरेक्ट फॉर्मूला देखता, अगर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो बोले तो हमारे को यहाँ से आ गई, नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला है बोलते, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यूज, t इज इक्वल्स टू L पावर x की वैल्यू क्या आई, 1/2, और y की वैल्यू क्या है हमारे को, -1/2। तो ये क्या आता, t इज इक्वल टू L पावर 1/2, g पावर -1/2 को डिनोमिनेटर में लिख ले सकता हूँ 1/2 बोल के, 1/2। तो L पावर 1/2 को अंडर रूट लिख सकता हूँ ना मैं, अंडर रूट L डिवाइडेड बाय अंडर रूट g। तो सी हियर पहले ये 3 सेपरेट क्वांटिटी से हम यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूले हम क्या करें, उन लोगों के बीच में एक रिलेशन निकाले हम, ठीक है। इसके ऊपर भी हमारे को प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम करे जब दिखाता हूँ। चलिए शैल वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम शुरू करेंगे हम लोग, यस सर। चलिए we'll do this first problem. Are you able to see the first question? यस सर। देखो सेम अब बोले सर का क्वेश्चन है हमारा, करे सोच क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़िए। एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम आर chosen as fundamental quantity. chosen as fundamental quantities. The dimensional formula of क्या पूछ रहा है, टेंशन विल बी, dimensional formula for surface tension will be। तो कौन से डिपेंडेंट क्वांटिटी से कौन से क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम लोग कौन सी चीज लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं यहाँ पर, Velocity. नहीं,
सरफेस टेंशन लिखना। ये देखो Energy. एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम और चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, किसका डायमेंशनल फॉर्मूले पूछ रहा हूँ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, इज इक्वल्स टू जो क्वांटिटीज दिया उन लोग कहाँ पर लिखना, राइट हैंड Right hand side. ई वी टी, उसके ऊपर क्या लिखना, पावर्स लिखना, एक्स X, वाई Y. जेड। अब यहाँ पर देखो मेरे को सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूले मालूम, कैसा फाइंड आउट करते सर बोलते हो, देर देखो। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज व्हाट मैडम, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूले अभी लिखे, व्हाट वाज द डायमेंशनल फॉर्मूला, MLT minus 2. ml पावर -2 डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता, एल। तो एल एल कैंसिल हो जाता, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, mt पावर -2। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं mt पावर -2 इज इक्वल्स टू एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता, एनर्जी क्या, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो। एक्चुअली आप लोगों को सब मालूम रहना है, एनर्जी बोल तो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी से करके दिखाता हूँ। यम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम रहता, जी बोल तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता, lt पावर -2, और h हाइट बोल तो लेंथ इज रहती है हाइट, Yes. तो इसका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाता, ml ml। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, y2 एल यहाँ पर भी है, Okay, एल यहाँ पर भी है, तो दिस विल बिकम ml² t पावर -2, यहाँ पर पावर क्या है, x। नेक्स्ट वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू LT मीटर पर minus 2. सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर बोल तो लेंथ, सेकंड बोल तो टाइम, तो क्या आता हमारे को LT lt पावर minus 2. -1 आता, -1 आता। तो यहाँ पर पावर क्या है इसका, y है। फाइनली क्या है यहाँ पे, टाइम सेकंड टाइम, टाइम बोल तो t से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसका पावर क्या है, z। अब इसको इक्वेट करो, पूरों को इक्वेट करो, क्या आता देखो, m t पावर -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी m है, एक ही m है ना, तो दिस विल बिकम m पावर x। l देखो l कितने, यहाँ पर भी l है, यहाँ पर भी l है, तो यहाँ पर l 2x, यहाँ पर 2 है, देखो 2 का पावर यहाँ पर x मिलाना नहीं, l 2x, और यहाँ पर भी l है ना, तो दिस विल बिकम l पावर y, y और l है, और l किधर भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है देखो, t है यहाँ पे, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो यहाँ पर क्या बनता, t पावर -2x, t पावर -y एंड t पावर z। तो और इसको अच्छे से लिखे तो क्या बन जाता, m तो एक ही है, m पावर x बन जाता, और यहाँ पर l है, यहाँ पर भी l है, तो क्या बनता है, l पावर 2x प्लस y, और t क्या बनता मैडम, t विल बिकम -2x -y प्लस, Minus y. इधर तक क्लियर है सब लोगों को। Yes. Yes, अब sir. देखो, अब इक्वेट करना है हमारे को, या व्हाट इज द पावर ऑफ m हियर, 1 यहाँ पर देखो m का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पर m का पावर कितना है, 1 यहाँ पर X x है, है, तो X डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इज इक्वल्स टू x, फर्स्ट वैल्यू आ गई, तो हमारे को e के ऊपर वैल्यू क्या आना, 1 आना, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो जा रहा है हमारे को। yes मैं इसका पेन का कलर चेंज करता हूँ, तो शायद आप लोग अच्छे से दिखता कलर, आई विल ट्राई टू राइट इट विद रेड कलर। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को ये फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो जा रहा है, कहीं को यहाँ पर e का पावर क्या है, -2 है, मगर हमारे को कितना आ रहा, 1 आ रहा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर t का पावर, t को बहुत लंबा हो जाता, l देखो, l का पावर क्या है, 2x प्लस 2x. 2x प्लस y, मगर यहाँ पर l है, ये इक्वेशन में l है no नहीं, तो यहाँ नहीं है, तो क्या लिखना हम लोग, 0 तो यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 into 1 plus y is equals to 0, that is nothing but y is equals to क्या रहा, -2. -2। देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, अब देखो ये ऑप्शन चले गया, नहीं यहाँ पर भी ये ऑप्शन में भी 2 है, ये ऑप्शन में भी 2 है, अभी नहीं बोल सकते हम ना। अच्छा दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया हमारे, either ऑप्शन could be 2, ऑप्शन कैन बी 4। चलिए अब लास्ट इक्वेशन देखेंगे हम, t का पावर क्या है, -2x -y प्लस z, यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर t का पावर कितना है, -2, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, -2 into x की वैल्यू कितनी आई, 1, y की वैल्यू कितनी आई, -2, बोलते यहाँ पर -2 -2 प्लस z की वैल्यू तो हमारे को फाइंड आउट करना है। तो सी ईयर इसको सॉल्व करें तो क्या था, -2
प्लस Same. 2 Z equals to -2. प्लस z इज इक्वल टू -2 प्लस 2 -2 कैंसिल हो जाता है, z की वैल्यू क्या है? तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? Fourth option. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ऐसे प्रॉब्लम्स कैसा करना है? Yes, sir. Yes, sir. ये ले लो होमवर्क आप लोगों का। देखो ये तो बहुत आसान है, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करो बोल रहा है? Mass. तो which thing should be written on left hand side? Mass should be written on left hand side, and what are the things that should be written on right hand side? Velocity, Velocity and time. time. Powers क्या लिखना हम लोग? X, Y, Z. कर लेते ना ये आंसर? Yes, sir. Shall I turn the page? Yes, sir. जल्दी करिए मैडम, आप लोग जितनी जल्दी करें मैं उतने प्रॉब्लम्स करा सकता हूँ, नहीं तो हम लोग को जल्दी खत्म करना पड़ता है क्लास। Done, sir. Screenshot at a time, do it later. चलिए अब ये देखो, नीट 2013 का क्वेश्चन है, बोला नहीं बहुत आसान छोटे छोटे क्वेश्चन आप पूछता है। देखो क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C, D आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर। कितना परसेंटेज दिया? 1, 2, 3, 4। किसके परसेंटेज एरर से? वो 1 A, B, C, D के परसेंटेज एरर से। तो इन्हें क्या बोल रहा? क्वांटिटी P कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। P की वैल्यू दिया, P इज इक्वल्स टू क्या दिया है यहाँ पे? P इज इक्वल्स टू A क्यूब B स्क्वायर CD। क्या फाइंड आउट करो बोला? परसेंटेज एरर इन P। तो पहले क्या करना है? इक्वेशन कैसा लिख लेना? पहले ऐसा लिखना, A क्यूब B स्क्वायर, नीचे वाले को C पावर -1 D पावर -1। अब करो परसेंटेज एरर डेल्टा P बाई P, परसेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पावर कितना है? 3 इंटू डेल्टा A बाई A प्लस 200. एक सेकंड दोबारा रुकिए। मैं वो जो 100 आप लोगों को करके दिखाया था ना, वो आप लोगों का वो जनरल मेथड से करना है। वो आईपी में वाईपी में आए तो करना है, मगर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नीट कर रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करना। तो हम लोग 100 100 नहीं लिख रहे, डायरेक्ट यहाँ पर परसेंटेज एरर दिया, सब्स्टिट्यूट कर देते। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? B का पावर डेल्टा B बाई B। यहाँ पर पावर क्या है? -1 है, मगर हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? डेल्टा C बाई C प्लस यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर क्या लिखते हैं? 1 इंटू डेल्टा D। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, डेल्टा P बाई P परसेंटेज इज इक्वल्स टू 3 इंटू A का परसेंटेज एरर कितना दिया? देखो A का परसेंटेज एरर 1%। 2 इंटू B का परसेंटेज एरर कितना दिया? 2% प्लस 1 इंटू C का परसेंटेज एरर इज गिवन एज 3% एंड D का परसेंटेज एरर इज गिवन एज 4%। 4 प्लस 3 हाउ मच? 7 प्लस 4 2 इंटू 2 4, 7 प्लस 4 इज 11 प्लस 3 is how much? 14%। So what is the answer? 14%। ऑप्शन 10%. समझ गए कैसा करना है ये प्रॉब्लम? 2019 में भी सेम क्वेश्चन पूछा, आप लोग देख के परेशान होते, इतने इजी क्वेश्चन अभी पूछते क्या बोलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पर। डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है। द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आर, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल निकाले तो हम लोग क्या इंक्लूड करना पड़ता है? कांस्टेंट इंक्लूड करना पड़ता है। So I'm writing F is equals to some constant K into velocity V। तो किसकी यूनिट होना बोल रहा है? K की वैल्यू। तो मैं कैसा लिख सकता हूँ? K is equals to force divided by velocity। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स F is equals to mass into acceleration। मास नहीं, वो डायमेंशनल फॉर्मूला है, हमारे को क्या होना है? यहाँ पे यूनिट होना है। तो मास को हम लोग किससे मेजर करते? केजी में मेजर करते, और एक्सेलरेशन को किसमें मेजर करते? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो लिखो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की यूनिट क्या रहती? वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो व्हाट कैन बी द राइट आंसर? First option. ये मीटर और ये मीटर तो कैंसल हो जाता, सेकंड और यहाँ पर चले गया तो ये चले आता, तो सेकंड ऊपर गया तो क्या बनता हमारे को? केजी सेकंड इनवर्स। फर्स्ट आंसर आता। किलोग्राम सेकंड इनवर्स 1। आसान है ना मैडम ये? यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। मेन डायमेंशंस याद रहना सर। हाँ डायमेंशन याद रहे, आप लोगों को बोले तो कुछ भी कर ले सकते चैप्टर में। अब ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, द डायमेंशन आर, ये एम्स में पूछा है क्वेश्चन। क्या है ये? एक्चुअली फॉर्मूला दिया है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होल पावर -1/2। एक्चुअली क्या बनता? 1/√,
Not. म्यू नॉट एप्सिलॉन Not नॉट। किसका epsilon फॉर्मूला है मालूम आप लोग ये? Speed of light. वेरी गुड, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट। अब ये मालूम रहा समझो, डायरेक्ट टिक कर सकते। वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? T power minus 1। So which one is the right answer? 44. ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया थे, अपना कर ले सकते। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। Yes. Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन क्या दिया देखो, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोल तो क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? h डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करते? I. I से। हमारे को क्या मालूम? एनर्जी E इज इक्वल्स टू h न्यू। h इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? एनर्जी बाय E by- फ्रीक्वेंसी। E by लिख सकते नहीं लिख सकते? Yes. बिल्कुल लिख सकते। अच्छा ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं मालूम रहा तो ऐसा करना पड़ता आप लोग, वो आप लोगों की मर्जी, आप कैसा करना चाहते। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता? मास इनटू आर स्क्वायर। अच्छा देखिए फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को डायमेंशंस डायरेक्टली मालूम है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं हम लोग। डायमेंशंस नहीं मालूम रहे तो ये तो प्रॉब्लम करना, मैं जैसा जा दिखा। था तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखे, क्या है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला? ml square t power minus 2. ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? टी पावर, फ्रीक्वेंसी का क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला? टी पावर minus Minus. अरे यारो फ्रीक्वेंसी Minus फ्रीक्वेंसी टी पावर माइनस फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 by t, दैट इज नथिंग बट 1 by t बोलो टी पावर माइनस 1 आता। डिवाइडेड बाय मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता? मास रहता m रहता, और r स्क्वायर विल बिकम L square. l स्क्वायर। ये l स्क्वायर है, l स्क्वायर कैंसिल, Cancel. ये मास और ये मास Cancer. T कैंसिल। power minus 9. तो यहाँ पर क्या बचता देखो? M. T power minus टी पावर 1. माइनस power 1 minus और 1. माइनस 1 को ऊपर ले लेंगे तो प्लस 1 बन जाता। T power minus 1. तो दिस विल बिकम टी पावर माइनस 1। टी पावर माइनस 1 अब बीच किसका फॉर्मूला बोले हम लोग? Frequency. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोल के बोले। समझ गए प्रॉब्लम? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। मैं Yes, थोड़ा sir. थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, मगर मेरे को ये कंप्लीट करना है ना, तो आधा अधूरा कंप्लीट करके चैप्टर खत्म करना पड़ता, तो आप लोगों को भी नुकसान नहीं होना, बल्कि मैं जल्दी कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया देखो क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m पावर a l पावर b t पावर c। तो यहाँ पर एक ऐसा दिया m पावर a l पावर b t पावर c। तो अब इन्हें ऑप्शंस दिया, अगर हम लोग ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा हमारे को देखना है। पहले फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। m पावर a की वैल्यू कितनी दिया? 1। b की वैल्यू कितनी दिया? Maximum. 0। c की वैल्यू कितनी दिया? t पावर माइनस। और ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूले बन रहा है? No. नो। कई बोल तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूले हमारा क्या मालूम? lt LT पावर, minus 1. छोड़ दो गलत ऑप्शन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है? lt LT पावर minus माइनस 2 आना। -2. मगर यहाँ पर क्या आ रहा देखो, एक्सेलरेशन करे तो m पावर 1 b ML. पावर 1 l पावर माइनस 2 आ रहा, तो दोनों सेम है? No. नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। फोर्स का देखिए, फोर्स का हमारे को डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मालूम? ml तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, m पावर 0 b पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2। तो ये देखो यहाँ पर m पावर 1 है, यहाँ पर क्या है? 0 है, तो दिस इज आल्सो ए नॉट राइट आंसर। प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स Force एक्टिंग upon पर area. यूनिट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता? ml t पावर माइनस 1। और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता? l स्क्वायर। Square. तो ये क्या बनता हमारे को डायमेंशनल फॉर्म में? m, यहाँ पर स्क्वायर है, ऊपर लेके तो l पावर माइनस 1 t पावर माइनस 1। अब चलो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। m पावर a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। T power minus 2. L power -1. minus T power 1. minus t पावर Minus माइनस 2, सॉरी यहाँ पे फोर्स का ml t पावर माइनस 2 आता। एरिया का 3 है ना सर? नहीं, एरिया का स्क्वायर आता, वॉल्यूम का l क्यूब आता। तो ये दोनों सही है ना, हमारे को इधर से भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही आ रहा है, यहाँ से भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही आ रहा है। तो विच वन इज द राइट आंसर? फोर्थ वन है। इसलिए आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखे तो पूरे प्रॉब्लम कर सकते हैं। Okay. चलिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब ये देखो, ये एरर का प्रॉब्लम आया, देखो अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछा है, IIT मेंस में भी पूछा रिसेंटली। क्वेश्चन क्या दिया देखो, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज हाउ मच?
2%. 2%. तो परसेंटेज एरर रेडियस का कैसा लिख सकता हूँ मैं? डेल्टा आर बाई आर परसेंटेज इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2%. 2%. क्या फाइंड आउट करो बोल रहा है ने? एरर इन डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 pi r. 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले परसेंटेज एरर फाइंड आउट करे जब हमला ये न्यूमेरिकल वैल्यू 6%. और ये कांस्टेंट्स को नेग्लेक्ट करते हैं. हमला नेग्लेक्ट करके क्या लिखते हैं? इसका एरर लिखते हैं. वॉल्यूम का एरर क्या बनता? डेल्टा वी बाई वी इंटू परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर कितना है? 3 into delta r divided by 100%. So that is nothing but delta r by r percentage कितना है? 2%. So what will be our answer? 6%. 6% will be our answer. Third is the right option. चलिए चलिए move on to the next problem. Yes. Yes, sir. चलिए और देखो फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला, मगर आप लोगों को ये मालूम रहना है क्वांटिटी क्या है. 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसका फॉर्मूला है भाई? ये Epsilon naught E square. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है. किसका फॉर्मूला है? Energy density. एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है. एनर्जी डेंसिटी बोलते क्या? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. एनर्जी का फॉर्मूला अब भी लिखे. क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? ml स्क्वायर टी पावर -2. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता? L cube. एल L क्यूब. cube. तो इसको सॉल्व करें तो क्या बनता? m. यहाँ पर 2 पावर 2, यहाँ पर 3 है. 2 - 3 कितना बनता? -1. -1 बनता. 2 है ना, 3 को ऊपर ले लेंगे तो -3 बनता. 2 - 3 विल बिकम -1. और यहाँ पर क्या है? टी पावर -2. तो विच वन इज द राइट आंसर? Fourth. सेकंड इज द राइट आंसर. तो ये पूरे अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली याद है एनर्जी डेंसिटी का तो डायरेक्ट टिक कर सकते. मैं ये ऐसा कई को करके दिखा रहा हूँ, बोल तो अगर आप लोगों को याद नहीं रहे तो फॉर्मूले के थ्रू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे. Yes, sir. अच्छा चलो, ये कन्वर्जन का प्रॉब्लम आ गया. बहुत अच्छा है. यहाँ पर देखो डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस. फाइल नंबर यहाँ पर सुनाई दे रहा, जरा म्यूट करके करिए. तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या बनता? सीजीएस सिस्टम की यूनिट क्या है यहाँ पे? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमारे को n1 की वैल्यू मालूम, u1 की वैल्यू भी मालूम. इज इक्वल्स टू इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज हाउ मच? लेंथ की यूनिट कितनी है कहते हैं? 10 सेंटीमीटर. और मास कितना है कहते हैं? 100. 100 ग्राम. तो वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल मतलब n2 की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर. तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर? n2 इंटू, अब यहाँ पर देखो ग्राम, यहाँ पर 1 ग्राम दिया, मगर यहाँ पर कितने ग्राम दिया है मास? 100 ग्राम. 100 ग्राम्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या? सेंटीमीटर क्यूब दिया, मगर यहाँ पर कितने सेंटीमीटर दिया? 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 10 सेंटीमीटर होल क्यूब. तो ग्राम की जगह क्या लिखा मैं? 100 ग्राम लिख दिया. सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिखा मैं यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर लिख. तो इसको सर नॉट विजिबल स्क्रीन, आप एक बार स्क्रीन एक बार फिर से ज्वाइन करिए, रीज्वाइन करिए, दिखता है स्क्रीन. आई होप एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन. Yes, sir. चलिए, so this will become 4 gram divided by centimeter cube is equals to 100 into n2 gram divided by 10 cube. बोल तो कितना बनता? 1 2 3 इतना ही बनता ना? Yes, sir. इंटू सेंटीमीटर क्यूब. तो ये ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर क्यूब कैंसल, ये ऊपर के 2 जीरोस नीचे के 2 जीरोस कैंसल. ये 10 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता मैडम? 4 into 10 is equals to n2. That is nothing but 40 is equals to what? n2. So which one is the right answer? Fourth one is the right answer. समझ गए ऐसे प्रॉब्लम है तो कैसा करना? Yes, sir. ओके राइट. चलिए दूसरे प्रॉब्लम पे जाएंगे. Yes, sir. चलिए, और जबरदस्त प्रॉब्लम और एक परसेंटेज का है यहाँ पे. Sir, Percent- please show that last problem ना. मैं लास्ट में वो, अरे आप लोगों को मैं लास्ट में दिखाता हूँ स्लाइड आप लोगों को. ठीक है, Okay, sir. लास्ट 1 मिनट में स्लाइड दिखाता हूँ पूरे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज, मेरे को प्रॉब्लम्स कराना है, जितने प्रॉब्लम्स करा उतना अच्छा आप लोगों को. परसेंटेज एरर इन मोमेंटम एंड मास आर गिवन एज व्हाट? 2% एंड 3%. तो मोमेंटम को किससे लिखते हैं हम लोग? डेल्टा पी बाई पी. परसेंटेज कितना दिया है? 2% दिया. और मास का परसेंटेज एरर कितना दिया? डेल्टा एम बाई एम. परसेंटेज एरर कितना दिया? 3% दिया. And what he is asking you to calculate the maximum percentage error in the value of kinetic energy.
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम मास एंड काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम और मास का रिलेशन मालूम आप लोगों को? काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर करे, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. 2m। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी स्क्वायर। एम को ऊपर ले लेंगे तो क्या बनता? -1। तो जब भी परसेंटेज एरर्स लिखते हैं हम लोग ये नंबर्स को इंक्लूड करना नहीं करना? नहीं करना। नहीं करना। तो अब ये परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाता? डेल्टा के डिवाइडेड बाई के परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा पी 2 डिवाइडेड into बाई delta P divided by V. प्लस यहाँ पर Plus -1 है, into delta m by प्लस 1 डेल्टा एम बाई एम इन परसेंटेज। अब सब्स्टिट्यूट करो, आंसर हो गया 2 इंटू डेल्टा पी बाई पी की वैल्यू कितनी दिया क्वेश्चन में? 4 plus 3. 2% प्लस 7%. 2%. और डेल्टा एम बाई एम की वैल्यू कितनी दिया? 3%। तो व्हाट विल बी 3 + 4 विल बी हाउ मच? 7. 7%। बहुत आसान है। चलिए Sir, अब plus देखो 3. जी जी +3 है ना, No, no. +3% ही है। Yes, sir. चलिए अब ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन दिया। अब देखो मैं क्या बोला क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज गिवन, कितना दिया मैडम? r इज इक्वल 5.3. 5.3 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। भाई क्या बोला? ये 5.3 कोसी वैल्यू रहती, बोला ट्रू वैल्यू रहता। हाँ। और ये जीरो एरर क्या, एरर वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0.1. वेरी गुड। 0.1. अब इन्हें क्या फाइंड आउट करो बोल रहा? परसेंटेज एरर इन Percentage error in its वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ 4 by स्फीयर इज 3 इक्वल minus 4/3 पाई r Yes. क्यूब। मगर जब भी हम लोग परसेंटेज एरर दिखते हैं तो क्या नेग्लेक्ट करना है? नंबर और कांस्टेंट। तो ये क्या बनता देखो? डेल्टा v बाई v इंटू 100% इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है? 3 into Three. delta r by r. 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। तो देखो 3 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू क्या है ये इक्वेशन में? बोलो मेरे को। 5.3. ए 0.1. एरर 0.1 0.1. और आर की वैल्यू क्या है? 5.3 5.3. इंटू 100। तो विच वन इज द राइट ऑप्शन? Second option. Second option. समझ गए कैसा करना है? Yes. पलटा हूं पेज। Yes. Yes, sir. चलिए ये 2016 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है। आई होप आई विल बी गिविंग दिस यू एज अ होमवर्क। इन्हें क्वेश्चन क्या पूछ रहा पहले देखेंगे मैडम। h प्लैंक्स कांस्टेंट दिया, और एक क्या दिया? वेलोसिटी दिया c, और एक क्या दिया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g दिया। एंड ही इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हैज द डायमेंशन ऑफ व्हाट मैडम? लेंथ। तो कोसी क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड लिखना, लेंथ को लेफ्ट हैंड साइड लिखना, बाकी क्वांटिटीज को किधर लिखना? Right राइट hand. हैंड। तो यहाँ पर पावर्स क्या बनते? x X, Y, Z। Z. लेंथ का डायमेंशन क्या है? l है। L. प्लैंक कांस्टेंट का अभी थोड़ी देर पहले लिखे, क्या है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूले? अरे यार अब भी करे ना। प्लैंक कांस्टेंट square t per minus 1. ml स्क्वायर t पावर -1 है -2 है? -2. -1. Minus 1. -2. -2. अरे यार e is -2. equals to e Minus 2 divided by means mu that's energy. ml स्क्वायर t पावर -2। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का t पावर -1 रहता, तो h इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर t पावर -2। t पावर -1 को ले लेंगे तो +1 बनता, तो ml स्क्वायर t पावर -1 ही आता। t पावर -1 फॉर x। और वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? l L. पावर -1 y। और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैं डिराइव करके दिखाया आप लोगों को। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? m इनवर्स l क्यूब t पावर -2, यही है ना ग्रेविटेशन का? Yes. अब आप लोग दो चीजें कर सकते हैं। यू कैन डू टू थिंग्स। क्या क्या है सर बोल? तो या तो इसको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करके आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये टर्म्स को ले जाके ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करो। कौन से ऑप्शन में हमारे को आंसर यल बच रहा, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको करके दिखा दूं, मैं आंसर डायरेक्ट करके दिखा दूं। ये एक्चुअली आंसर इज 3। आंसर क्या है? 3 है। अच्छा ये कर लेते हैं आप लोग होमवर्क। Yes, sir. एक बोलते सॉल्व करे तो लेंथी हो जाता, बहुत टाइम लग जाता। Yes, sir. आर यू श्योर? कर लेते ना? आप एक बार आई होप डायरेक्ट करके दिखाइए ना। आप एक बार Direct. डायरेक्ट कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रख रहा हूँ एक वैल्यू है यहाँ पे अंडर रूट, ये थर्ड ऑप्शन ही ले लो। h की वैल्यू क्या है? H. m l स्क्वायर t पावर -1। और g की वैल्यू क्या है? M
power M minus m one minus 1 l cube t L power three minus 2 minus डिवाइडेड बाई c की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट LT l t पावर माइनस 1 होल पावर, यहाँ पर पावर क्या है 3/2. 3/2। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा देखो, अंडर रूट m पावर 1 है, m पावर माइनस 1 है, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। चलो गए यहाँ पर l स्क्वायर है, l क्यूब है, तो क्या बनता है L power L 5. l पावर 5, और यहाँ पर t पावर माइनस 1 है, t पावर माइनस 2 है, क्या बनता है Minus t पावर -3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये क्या बनता देखो l पावर 3/2 एंड t पावर -3 by माइनस 3/2। तो अंडर रूट ले लेंगे तो l क्यूब ही बनता ना मैडम, ये yes. इधर देखो, दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, अंडर रूट l पावर 5 t पावर माइनस 3, और इसको कैसा लिख सकते हैं हम लोग, l क्यूब अंडर रूट t पावर माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं ना। yes sir. अब कुछ yes भी नहीं, देखो क्या बनता, l पावर 5 ऊपर बच के l पावर 3 नीचे है, यहाँ पर 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 3 का रूट कैंसर, cancel तो l बचता क्या हमारे को अंडर रूट l स्क्वायर, कहीं बोल तो 5 है 3 को ऊपर ले लेंगे तो 2 बचता, l स्क्वायर की वैल्यू क्या है L l, तो हमारे को किसका डायमेंशन होना है L l, तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो आप लोग क्या करना, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थर्ड में उस हिसाब से कर ले सकते हैं, ठीक है। okay sir. sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। Yes. अरे हमारे पास 5 Yes, मिनट ही sir. बच के है यार। 5 minutes left, sir. अच्छा ये प्रॉब्लम भी वैसी है, नीट 2017 में कर रहे थे ये भी, फिर से Yes, यहाँ पर sir. किसका किसका डायमेंशन होना बोला इन्हें, Dimension the length. लेंथ का डायमेंशन ही होना बोला। अच्छा ये सार यहाँ पर क्या की नई टर्म दिख रही है हमारे को, ये किसका फॉर्मूला रहता है एक्चुअली, f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो इसे हमारा क्या लिख सकते हैं, f इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसका रहता है, कर लीजिए आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये कौन सा प्रॉब्लम है, 2017 का है। चलिए 2019 का प्रॉब्लम करके आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास मैडम, कई बार तो थोड़ी चीजें आप लोगों को समझाना है, ये कर ले सकते हैं आप लोग। Yes sir. 2019 का है, परसेंटेज एरर भी दे दिया 1% कर सकते हैं, 2% sir. Yes, sir, 3% कर 4%। सकते कर ले सकते हैं ना आप लोग। yes sir. चलिए Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग सर को एक बार स्टॉप, स्लाइड्स बता दीजिए हाँ मुझे। दिखा रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ।